Notable scholars. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. To develop historiography, so many scholars have contributed their things to develop this historiography. Let us have a look at the contribution of a few notable scholars. Let's see about few notable scholars. René Descartes, 1596 to 1650. René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. रेने डिस्कास्ट का मेन मोटिव ये था कि उनको जितने भी रिलायबिलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से वेरीफाई किया जाए और ये देखा जाए कि वो कितना सच मानने लायक है, वो कितना बिलीव करने लायक है और उसको एकदम अच्छे से एग्जामिन किया जाए. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, उन्होंने एक बुक लिखा था that is Discourse on the Method. The following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. उसके हिसाब से साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था इन द हिस्ट्री. नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. ये उनका मेन मोटिव था कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई भी थिंग या ऐसा कोई भी एविडेंस अगर तुम्हें मिला है तो उसे तब तक एक्सेप्ट मत करो जब तक तुम्हें उसके सारे के सारे सवाल ना मिल जाए. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन दैट कि ये शायद ऐसा हो सकता है, ये शायद गलत हो सकता है, इस पर ये है, तो सारे के सारे डाउट पहले कंप्लीट करो, डाउट क्लियर करो, उसके बाद में उसको एज ए एविडेंस रखो. वोल्टेयर. वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज Francois Marie Arouet. He was French. He opined that along with objective truth and chronological of historical event, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was equally important in historiography. According to Walter, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स ही कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ में ही सोशल, ट्रेडिशनल, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर भी, और या फिर पूरा का पूरा उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट गेव राइज to the thought that understanding of aspect of human life is important for history writing. According to him, he said that not only the chronological orders or all these things, also human life. We need to understand about all the aspect of human life to write history. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. It is also said that Voltaire was the founder of modern historiography. George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. Obviously, he said that the historical reality should be in a logical manner. There should be always a logic. To him, the timeline of historical event was indicative of progress. टाइमलाइन जितने भी थे हिस्टोरिकल के, उनके हिसाब से वो प्रोग्रेस के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव वे थे. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. उनके हिसाब से if something I have cleared that कि ये चीज़ इतने ईयर में हुआ है, शिवाजी का बॉर्न 1629 में हुआ है अगर, तो आई हैव टू प्रूव दैट. अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ ये डेट पे नहीं, ये डेट के बदले ये डेट पे हुआ था, उसका उनके पास प्रूफ है, तो उसके हिसाब से विद द न्यू एविडेंस वी नीड टू चेंज आवर हिस्ट्री.
With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific method. उनके हिसाब से जो साइंटिफिक मेथड के साइंटिस्ट है उसमें और हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये कुछ ज़्यादा हिस्ट्री लिखना भी कुछ कम बात नहीं है। जैसे ही साइंटिस्ट लोग मेहनत करते हैं वैसे ही हिस्टोरियंस भी मेहनत करते हैं। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज़ पब्लिश्ड इन अ बुक। उनके जितने भी लेक्चर्स और आर्टिकल्स हैं उसको एक बुक में पब्लिश किया गया है, दैट इज़ एंड टाइटल वॉज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। इस बुक का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन। उनकी रीज़न इन हिस्ट्री बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इट इज़ गुड टू नो दिस। हेजल के बारे में हम पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू हेजल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन्स इन टर्म ऑफ टू डायरेक्ट ऑपोजिट्स। Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For example, true, false, good, bad, etc. According to Hegel, उनके हिसाब से कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमें दोनों साइड उनके अपोजिट डायरेक्शंस को देखना ज़रूरी है, चाहे वो सच और झूठ के बीच में हो, चाहे वो ट्रू और फॉल्स के बीच में हो, चाहे वो अच्छा या बुरा के बीच में हो। एवरीथिंग मतलब वी नीड टू सी बोथ द साइड्स, नॉट ओनली वन साइड। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग, वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें दोनों चीज़ का समझना ज़रूरी है। एक साइड से समझ के हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज़ नोन एज डायलेक्टिक्स। ऐसे एनालिसिस को जिसमें हम अपोजिट्स देखते हैं उसे हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। डायलेक्टिक्स को एक लैंग्वेज भी कहा जाता है। In this method, a theory is proposed at beginning, which is called thesis. इसे हम thesis कहते हैं। That is, thesis means positive, एक assumptions। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ पॉजिटिव चीज़ें ही दिखती है। Then another theory is proposed, which is contrary to the thesis. Contrary मतलब वही opposite, thesis के opposite जो होता है that is कॉल्ड एंटीथेसिस। तो अब थीसिस मीन्स पॉजिटिव, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस, दैट इज नेगेटिव। आफ्टर अ थोरोलॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ, अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड्स अ गिस्ट ऑफ बोथ द थीसिस एंड द एंटीथेसिस। उसके बाद में जब हम लोग दोनों भी स्टडी कर लेंगे, थीसिस और एंटीथेसिस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के उसको कंबाइन करेंगे। दिस प्रोसेस इज अराइविंग एट द न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। जब दोनों भी थीसिस को कंबाइन कर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, उसका एक न्यू चीज़ निकलेगा, एक डिफरेंट लुक आएगा, दैट इज़ एंटीथेसिस। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर ट्रूथ और फॉल्स का दोनों का एक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे है थीसिस एंड एंटीथेसिस का कॉम्बिनेशन है सिंथेसिस। लेपोल्ड वॉन रैंके 1795-1886। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. Berlin University was in Germany और 19th century के टाइम पे he was greatly famous for his thought or anything. He spoke about the critical method of historical research. उन्होंने critical method of historical research के बारे में बोला था। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original document. He also stated that all types of documents are associated
with a historical event need to be examined with a great care. उनके हिसाब से जितने भी historical documents हमें मिलते हैं उसे एकदम great care के साथ में एकदम संभाल के उसका examine करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. उनके हिसाब से ये मेथड अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुँचने के लिए पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है. He criticized imaginative narration of history. Collection of his article is published in 2 books entitled, उनकी 2 बुक्स निकली थी, that is The Theory and Practical of History and The Secret of World History.